پر جوائن کریں گے. یہ ایک چھوٹی سی ٹرائی آپ اپنے آپس میں کر لیجیے. ناؤ آئی ایم گوئنگ فار دا نیکسٹ آپشن. جہاں پر میں جا رہا ہوں وہ آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے اسکرین پر اگر ٹچ کریں گے تو نیچے آپ کو اسکرین پہ ایک گرین کلر کا باکس شیئر بول کر نظر آئے گا. شیئر والا باکس گرین کلر کا نظر آئے گا. اس شیئر باکس میں اگر ہم جائیں گے تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. فوٹوز, ڈاکیومینٹس, باکس, ڈراپ باکس, گوگل ڈرائیو, مائکروسافٹ ون ڈرائیو اور URL, بک مارک, اسکرین وغیرہ. نیچے سب سے نیچے ہے شیئر وائٹ بورڈ, جو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. شیئر وائٹ بورڈ آیا ہے. اب جب ہم بچوں کے ساتھ میں شیئرنگ کریں گے تو آپ کو سر پلیز آپ روکیے, میں شیئر کر رہا ہوں. سر روکیے پلیز, جو اسکرین شیئر کر رہے ہیں پلیز وہ روکیے, میں شیئر کر رہا ہوں فی الحال. تو میں شیئر کر رہا ہوں فی الحال ایک وائٹ بورڈ. تو یہ وائٹ بورڈ آپ کے سامنے آ چکا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی انگلی سے فی الحال اس پر اپنا نام لکھیں. اس وائٹ بورڈ پر ٹچ کریں, پین آ جائے گا, پین کا استعمال کریں اور اپنا نام لکھیں. جزاک اللہ, ویری نائس, ویری نائس, ماشاء اللہ. کوئی اور صاحب نے شیئر کرنا سٹارٹ کیا ہے؟ خیر اینی وے, تو یہ ایک وائٹ بورڈ ہے. یہ سارے کے سارے آپ کے اسٹوڈینٹس ایک ساتھ دیکھتے ہیں. سارے کے سارے آپ کے اسٹوڈینٹس اس کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں. تو آپ اس پر کچھ بھی لکھو گے تو سارے بچوں کے پاس پہنچ جائے گا ایک ہی ساتھ. تو ایک بہت ہی چھوٹا سا اور بہترین آپشن ہے جس میں آپ جو بھی ٹائپ کر رہے ہو. جی سر. سر جیسا کہ آپ ابھی اتنے سارے لوگ لکھ رہے ہیں, سپوز کوئی ایکسپلین کرے, کوئی ٹیچر کچھ ایکسپلین کر رہا ہے وائٹ بورڈ پر, جس طرح سے یہاں پہ بہت سارے لوگ لکھ دیے, تو یہ ایسا ایکسپلین کرتے وقت بچے کو کوئی نہیں لکھے جیسا ایسا کچھ ہے کیا آپشن سر وہاں پہ؟ سر بچہ آپ کی بات سن رہا ہوگا اور بچہ آپ کا احترام کرتا ہے. آپ بچے کو بول دیں گے کہ بھائی کچھ بھی مت لکھو تو وہ نہیں لکھے گا, صرف آپ ہی لکھو گے. یہ سہولت ہے. کوئی پلیز اپنا مائک تھوڑا میوٹ کریں, بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے. تو بچہ یہاں پر نہیں لکھے گا, آپ لکھو گے جب آپ بچے کو انسٹرکشن دے دو گے. لیکن پرابلم کیا ہو رہی سر؟ ہلو جی سر. سر ابھی میں آن لائن کلاس اسٹارٹ کیا ہوں سر, اس میں 20 to 25 اسٹوڈینٹس ہیں. پرابلم کیا ہو رہی مطلب معلوم نہیں ہو رہا. کبھی ہم لوگ جیسا وائٹ بورڈ کبھی یوز کر رہے ہیں نا, تو اس میں کبھی کوئی تو بھی ایک لڑکا اب اس میں ڈسٹرب ہو جائے, ڈسٹرب کر رہا, تو اب معلوم نہیں ہو رہا کہ کون کر رہا. ہم لوگ کو وہ ایک پرابلم ہو رہی سر. جی اس کا اگر کوئی سولوشن اگر ہے تو بولیے نا سر. سر آپ کا سوال دوبارہ پوچھیں کیونکہ آپ کی آواز رک کر آئی ہے. کیا معلوم نہیں ہو رہا تھا آپ کو؟ سر جس طرح سے اب اگر سر میں کچھ یہاں پر ایکسپلین کر رہا ہوں اسٹوڈنٹ کو, یہاں پر کچھ ایکسپلین میں کر رہا ہوں, تو یہاں ایکسپلین کرتے وقت کوئی دوسرا ٹچ کرے گا, جیسا ابھی یہاں پہ ہو رہا دوسرا کوئی ٹچ کرے گا تو انہیں بھی مطلب ڈسٹربینس ہو جائے گا. مطلب ٹیچر کو ایکسپلین کرتے وقت دوسرے اسٹوڈنٹس کو ڈسٹرب ہو جائے گا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ تو اس کو مطلب اس کو روکنے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ ہے کیا؟ اب سپوز میرے پاس 20 اسٹوڈنٹس ہیں سر, 20 to 25 اسٹوڈنٹس میں لے رہا ہوں کلاس, تو پتا نہیں چلے گا میرے کو کہ کون ڈسٹرب کر رہا ہے. سر اس میں جی ابھی ایک ٹپنی آئی ہے یہاں پہ ذیشان سر کی طرف سے, انہوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ وائٹ بورڈ پر بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہو. انشاءاللہ وہ آپ کو Day 3 میں آئے گا, Day 3 میں بتائیں گے. اب میں آپ کو ایک دوسرا آپشن یہ بول سکتا ہوں سر, آپ جب ایکسپلین کر رہے ہیں نا تو آپ پہلے جو شیئر کریں پلیز آپ یہ شیئر ہٹا دیجیے سر, یہاں سے آپ کا شیئر ہٹا دیجیے پلیز. تو جب آپ ایکسپلین کر رہے ہو تو آپ اپنے ویڈیو پہ جب جاؤ گے تو آپ اپنے ویڈیو سے کیا کر سکتے ہو, اپنا کیمرے کو ٹرن آف کر دینا, ادھر سے ٹرن کر دینا, اور آپ بورڈ پر اپنے ہاتھ سے جو لکھو گے بچہ دیکھے گا, تو وہاں پر لائیو چلے گا, تو کوئی بھی بچہ اس پر کاپی نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل ابھی یہ میرا کیمرہ ہے, یہ میرے کیمرے کو میں اگر دوسری طرف گھما دے رہا ہوں تو میرے پاس اس کیمرے کے پاس میں میرے پاس بورڈ ہے اور میں یہاں پر ایکسپلین کر رہا ہوں اور بچہ اس کو دیکھ رہا ہے, تو یہاں پہ کوئی اور بچہ لکھ نہیں سکتا. اور جو آپ کی آواز نہیں آ رہی سر. 40 پہلے جو بورڈ ہے وہ بھی ڈال سکتے ہو, آپ نوٹس وہ بھی ڈال سکتے ہو, آپ وائٹ بورڈ پر کچھ کر رہے ہو وہ بھی ڈال سکتے ہو. ابھی تک آپ جو بھی بولے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا, کون پرابلم تھا؟ ابھی جسٹ 30 سیکنڈ تک کچھ بولے, ابھی کچھ بھی نہیں سمجھ نہیں آیا, کون پرابلم تھا سر؟ ہاں
सर इंशाल्लाह आपको कल वाले में और डिटेल में दूंगा, फिलहाल मैं आपको बोलता हूँ व्हाइट बोर्ड को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप लाइव वीडियोस में लेकर कर सकते हो जहाँ पे बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप बोर्ड के ऊपर जो भी वर्क कर रहे हो वो भी उस पर नहीं आएगा, आप वहाँ पे जो वर्क कर रहे हो नहीं आएगा, तो आपके लिए बहुत बड़ी सहूलत है। रेहान साहब, सैयद रेहान साहब फिलहाल स्क्रीन रोक दीजिए आपका शेयर, या बाद में ट्राई कर लीजिए क्योंकि करीब 60 लोग हैं, सबको डिस्टर्ब होगा। रेहान साहब, सैयद रेहान साहब स्क्रीन रोकिए आपका प्लीज। ओके, अब हम दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रहा है, उस स्क्रीन शेयर को रोकना है पहले, राइट। जज़ाकल्लाह खैर रेहान साहब, हैंड ऑन आप बिल्कुल कर सकते हैं, बाद में कर लीजिए, जज़ाकल्लाह। तो अभी हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। आपके मेन स्क्रीन पर नीचे आपको पार्टिसिपेंट्स बोलकर नजर आ रहा है, देखिए आप उस पर क्लिक करिए, आपको सारे लोग वहां नजर आएंगे, जितने भी लोग पार्टिसिपेंट हैं सब लोग नजर आएंगे। तो फिलहाल हमारा स्क्रीन हमको ये बता रहा है पार्टिसिपेंट्स पर क्लिक करने पर कि हमारे स्क्रीन को 59 लोग फिलहाल देख रहे हैं, ये सेशन 59 लोग सुन रहे हैं। इसमें से आप किसी को का भी वीडियो ऑन कर सकते हो, आप एडमिन हो तो किसी का भी वीडियो ऑफ कर सकते हो, आप साथ ही साथ आपके साथ किसी और को भी इसमें जोड़ सकते हो एज अ होस्ट, यानी वो भी मेजबानी कर सकते हैं। फिलहाल मैं मेरे साथ सखलन सर को इसमें जोड़ा हुआ हूँ जो मेजबानी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सेशन जब लोगे तो आप अपने साथ दूसरों को भी इसमें जोड़ सकते हो और वो लोग भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये 59 पार्टिसिपेंट में किसी को हटाना है या जोड़ना है, ये भी आप कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट बार बार आपको लग रहा है कि डिस्टर्ब कर रहा है तो आप यहाँ से उसको ब्लॉक कर सकते हो, आप यहाँ से उसको रिमूव भी कर सकते हो सेशन के दौरान में। इस पर किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं। चलिए ग्रेट, माशाल्लाह। तो अब कल हमारी जो बारी रहेगी, मैं एक बार बता दूं कल हम किन चीजों पर जा रहे हैं। हम शेयर में कल जो है ग्रीन बॉक्स जो शेयर है उसके अंदर के बाकी के सारे ऑप्शंस हम देखेंगे। शेयर में डॉक्यूमेंट्स, यानी अगर मैं कोई टीचर हूं तो मेरे क्वेश्चन आंसर्स बच्चों तक कैसे पहुंचाऊं, डॉक्यूमेंट नोट्स उन तक कैसे दूं, ये हम देखेंगे। या फिर मैं सारी की सारी चीजें मेरे पास एक जगह स्टोर्ड है, वो बच्चों से मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि बच्चा ये सेशन खत्म होने के बाद भी पढ़ता रहे, वो भी इसमें ऑप्शन है। गूगल ड्राइव का इसमें ऑप्शन है जिसमें हम गूगल ड्राइव के जरिए से बच्चे तक क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स, वीडियो सारी चीजें पहुंचा सकते हैं। और वेब लिंक्स इसके अंदर है, बहुत बड़ी सहूलत है वेब लिंक्स की, यानी कोई भी वेब मार्क है, वेब लिंक है, मैं यूआरएल बुक मार्क बच्चों से कैसे शेयर करूंगा और बच्चे उस पर टच कर कर और मजीद जानकारी कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब कोरोना वायरस के बारे में बच्चों को आप सिखा रहे हो, तो ये कोरोना वायरस जो है इसकी बॉडी कैसे बनी हुई है, क्यों इसके अंदर कोई भी हमारे हमको दवाई नहीं बन रही, आप बताना चाह रहे हैं तो उनके लिंक्स आप भेज सकते हो, उन लिंक्स को लेकर बच्चे इस वायरस के बारे में पढ़ सकते हैं। तो एक वेब पेज मुकम्मल तौर पर आप शेयर कर सकते हैं। अगर मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ या फिर हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड की पूरी नोट्स एक वेब पेज लाकर मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। मेरा सेशन चलता रहेगा, मैं बोलता रहूंगा और बच्चा अपने आप उसको पढ़ता रहेगा। ये आपके पास बहुत बड़ी सहूलत है। फिर आप इसके अंदर लाइव एक स्क्रीन शेयर कर सकते हो जिसमें जिसमें हमारे फोन पर जो चल रहा है वो बच्चा देखेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ आप सब देख सकते हैं। ये मेरा स्क्रीन है, मैं अपने स्क्रीन पर कहाँ जा रहा हूँ आप देख सकते हैं। मैं अपने स्क्रीन के ऊपर से कोई लिंक पे जा रहा हूँ, कोई गूगल पर जा रहा हूँ, मैं वहां पर से कोई चीज शेयर कर रहा हूँ तो ये मुझे वहां पर मिलेगी। ये मैं जो देख रहा हूँ बच्चा भी देखेगा, आप सब भी देखेंगे। और सबसे बड़ी सहूलत देखिए, जब मैं ये कर रहा हूँ तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आवाज भी आप तक आ रही है। तो अब मैं कोरोना वायरस के बारे में बच्चों को अपडेट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से भी अपडेट कर सकता हूँ। ये सारी चीजें मुझे बहुत बड़ी सहूलत है बच्चे तक पहुंचने की। स्क्रीन शेयर जैसे मुझे बच्चों तक पहुंचने में बहुत हेल्प करेंगे। तो सर ये जो चीजें हैं इंशाल्लाह इसके अंदर हम बहुत ही डीप डाइविंग करेंगे कल इंशाल्लाह। हम इसके 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 अंदर और दूसरे ऑप्शंस कैसे पहुंच सकते हैं हम ये भी देखेंगे। तो फिलहाल मैं अपना शेयर स्टॉप किया हूँ, मैं वापस आया हूँ। अगर इसके अंदर मैं और भी आगे जाऊं तो बहुत सारी और ऑप्शन बनते जा रही हैं, लेकिन मैं सारी चीजें आज ही नहीं बताऊंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। आखिरी का जैसे डिसाइड किया गया था, आखिरी का कुछ हिस्सा हम सवाल जवाब के लिए और आपके पास से मजीद इंफॉर्मेशन के लिए भी रखे हैं।
तो कल 4 बजे ठीक हम डीप जाएंगे जूम में, जिसमें हम वेबसाइट शेयरिंग, लाइव वीडियो शेयरिंग, यूट्यूब शेयरिंग और मेरे अपने खुद के बनाए हुए वीडियोस मैं बच्चों तक कैसे पहुंचा सकता हूं, ये भी हम सीखेंगे। और मैं बोर्ड के ऊपर लाइव पढ़ा रहा हूं तो कैसे जाऊंगा, हम ये भी सीखेंगे इंशाल्लाह। अभी आखिरी का कुछ वक्त है, इसमें सवाल जवाब के लिए रखते हैं। आप इस सेशन से जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जवाब सिर्फ मैं ही नहीं दूंगा, आप में से किसी और को भी इसका जवाब पता है तो वो भी दे सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर ये आप जो बोर्ड के साइड मूव करके कैमरा बता रहे तो साउंड में हम लोग करें तो साउंड डिस्टर्ब होगा ना सर? साउंड क्लियरिटी नहीं आती, उसके लिए क्या करना चाहिए? सर आप हेडफोन जैसे होते हैं, एक अच्छी क्वालिटी वाली हेडफोन जिसके अंदर माइक लगा हो यूज कर सकते हैं। आप कॉलर माइक बहुत ही सस्ता आता है, कॉलर माइक सीधा फोन के जैक में लगा के आप बोल सकते हो। कैमरा किधर भी जाए आवाज आपकी रेंज में आएगी। या फिर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई आपका बेटी है, बेटा है, उनको बोलेंगे कि बेटा 5 मिनट 10 मिनट मेरा फोन होल्ड करना है इसे, क्योंकि मैं बोर्ड पर कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सहूलत भी है। देखिए हम सब घर पे बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप सब पढ़ रहे हैं, तो आप जस्ट को ये इमेजिन करना है आपको कि आपके बदले में आपका स्टूडेंट है और काम वही होगा, घर बैठे होगा। तो इसके अंदर नोट जैसे अभी मैं आपको छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ सर, मैं मेरे कैमरे को टर्न ऑफ कर रहा हूँ, देखिए मैं दूसरे साइड आ गया। अभी मैं मेरे टेबल पर रखी हुई एक नोटबुक है, ये मैं खोल रहा हूँ और इस नोटबुक से मैं यहाँ से कुछ नोट्स निकाल रहा हूँ। तो अब ये नोट्स को मैं ऐसे रखते हुए बता सकता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये चीजें हम पढ़ा सकते हैं। मैं साथ ही साथ अगर कुछ लिख रहा हूँ, आई कैन राइट, मैं बच्चों को यहाँ पे बता सकता हूँ कि इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, आई कैन डू इट, और बच्चा इसको पढ़ रहा है। मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए भी मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। अब आपको मेरी आवाज भी पहुंच रही है। अब इसकी सहूलत ये है कि ये वन वे प्रोसेस नहीं है, बच्चा जो सुन रहा है वो भी बोल सकता है, तो ये बहुत ही बड़ी इसमें सहूलत है। जी सर, और कोई सवाल? सर और एक सवाल, अब हम लोग बच्चों को क्लासेस पढ़ाना चाहेंगे तो ये आईडी क्रिएट कैसा करना सर? पासवर्ड और आईडी का क्रिएट कैसा करना? जी सर, अभी इसके बारे में जिक्र किया हूँ सर, छोटा सा है। आप जूम जब ऑन करोगे, अभी आप इस वीडियो पे रहकर नहीं कर सकते, आप जब जूम ऑन करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन पूछेगा एक कि स्टार्ट अ मीटिंग बोलकर, स्टार्ट ए मीटिंग, ज्वाइन ए मीटिंग आपको ऑप्शन देगा। तो आप वहां पे स्टार्ट ए मीटिंग के पास जाओगे और वहां पर जाकर आप एक मीटिंग कैसे स्टार्ट करना वो आपको डायरेक्ट करेगा। उस पर आप क्लिक करोगे, उसका आपको पहला ऑप्शन टाइम पूछेगा, आप कब करना है टाइम डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए, उसके बाद में मीटिंग का आईडी और पासवर्ड अपने आप नीचे आ जाएगा, ठीक है। और आप इसका क्लास का कुछ नाम देना चाह रहे हैं तो हेडिंग ऊपर आपको आ जाएगी, वहां पे आप नाम देंगे। जैसे मैंने दिया आईटा ऑनलाइन टीचिंग कोर्स, आप अपना फिजिक्स का है या 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, बायोलॉजी, जो भी है आप टॉपिक दोगे, आप अपना नाम भी वहां पे डाल सकते हो। गवर्नमेंट ऐसे चीजों को बहुत एनकरेज कर रही है। हम टी-सैट ऐप को बोलते हैं, टी-सैट ऐप में मैंने जाकर देखा, सिर्फ और सिर्फ वहां पर मैक्सिमम क्लासेस जो हैं वो लेक्चर बेस्ड हैं। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं होगा, आप यहाँ पे वीडियो दिखाओगे, फोटो दिखाओगे, अपना सेल्फ एक्सप्लेनेशन दिखाओगे, आप अपना बोर्ड दिखाओगे, ये सारी चीजें। तो एक 40 मिनट की क्लास को आप 10-10 मिनट में ऐसा डिवाइड करके करोगे तो बच्चे को बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा सर, और वो सीखेगा और वो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। आप अपना खुद का सेशन रिकॉर्ड करके भी व्हाट्सएप के जरिए से जो अटेंड नहीं हुआ है उसको वापस भेज भी सकते हो, आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, काफी सहूलत है इसमें। जी, कोई और सवाल प्लीज? बहुत बहुत शुक्रिया सर। आरिफ साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम सर। आरिफ साहब जी, मैं नजीर। जी सर, कड़पा से। अभी हाँ जी, अभी देखिए हमारे रिमोट इलाकों में यानी मंडलों में उनके पास सेल फोन, स्मार्टफोन का सहूलत नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों को हमें कैसे समझा सकते हैं ऑनलाइन जूम के जरिए से? सर पहली चीज, जहां पर बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं, कई जगहों पे हो रहा है, इवन हैदराबाद शहर में भी कई ऐसे घर हैं जहां पर अच्छी क्वालिटी का स्मार्टफोन नहीं है जिस पर जूम डाउनलोड किया जा सकता है। तो सर
आप ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म बदल दीजिए, आप जूम से मत करिए, ये हम शुरू में भी कह रहे थे, जूम से मत करिए। आप उस बच्चे के पास क्या सहूलत है देखिए, उसके पास अगर ईमेल की सहूलत है, उसके पास नॉर्मल फोन है, ईमेल वाला भी है, तो आप ईमेल के जरिए से अपने सेल्फ रिकॉर्डेड वीडियोस को अटैच करके भेज सकते हो। आप अपना गूगल ड्राइव बनाकर गूगल ड्राइव की लिंक भेज सकते हो। अगर उनके पास सिर्फ बात करने वाला फोन है, जिसपे सिर्फ वो फोन कॉल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ही रिसीव कर सकते हैं, तो सर उसका भी आप मौके का फायदा उठाइए, सीधे उनको कॉल करके 101 आप कर सकते हो। या फिर इसको हम कहते हैं फ्लिप क्लास। फ्लिप क्लास इंशाल्लाह तीसरे दिन आएगा, हमारी सेशन के तीसरे दिन। फ्लिप क्लास में ये होगा कि एक बच्चा, कोई एक बच्चा जिसके पास ये सहूलत है, आप उसको ट्रेन करते हो और वो बच्चा पीयर लर्निंग के जरिए से उस बच्चे तक पहुंचता है जिसके पास सिर्फ फोन की सहूलत है, मामूली फोन की सहूलत है, और उसको रीच करने की कोशिश करता है, पीयर लर्निंग करता है। सर लॉकडाउन में ये मना नहीं है कि आजू बाजू रहने वाले एक या दो बच्चे एक घर में जुट होकर एक्सप्लेन कर सकते, ये मना नहीं। वो सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। उमन देहातों में, गाँव में जो है उतना स्ट्रिक्ट माहौल नहीं है, वहां पर एक घर का शख्स दूसरे घर के गांव तक पहुंच सकता है। शहरों में, बड़े शहरों में ये इसका इश्यूज है। और अनवर साहब के यहाँ से अभी एक सजेशन है। अनवर साहब मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा, प्लीज आप वो सजेशन को सामने लाइए, मैं मिस किया हूँ। अनवर साहब जो अभी मैसेज भेजे हैं, प्लीज आप उसको दोबारा लाइए। में के क्या? जी सर। तो मैं बोला कि हाँ डाल सकते हैं, अगर रिकॉर्ड कर सकते हैं तो। और आरिफ साहब अगर आप परमिशन देते हैं तो कल से मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ मेरे लैपटॉप में, और उसके बाद में फिर सेम ग्रुप में वो वीडियो डालता हूँ मैं। अरे जज़ाकल्लाह, बहुत बड़ी बात है सर, परमिशन देने वाली बात क्या सर, नेकी और पूछ वाला मामला है। तो सर बिल्कुल इसको लीजिए आप। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ ना सिर्फ इस ग्रुप में बल्कि इंडिया के किसी भी जगह पे कोई भी टीचर को जरूरत है वहां तक पहुंचाइए सर। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिंक बहुत प्यारे हैं, आप इस मीटिंग में मेरे करीब चार टीचर्स कुछ शायद शामिल हुए हैं इसके अंदर। मैं टीचर ग्रुप में डाला था मैं, इंशाल्लाह वो भी कल से और जानेंगे। जज़ाकल्लाह सर। तो नजीर बादशाह साहब हम यही बात कर रहे थे, जहां पर बेसिक फोन की सहूलत है वहां तक भी हम पहुंच सकते हैं। उसके लिए भी कई ऑप्शंस हैं, लिंक्स हैं, और वो एक रेगुलर मैसेजेस की तरह उनको जाएंगे, वो लोग उसको पढ़कर उससे भी सीख सकते हैं और आपसे रब्त में आ सकते हैं। और कॉन्फ्रेंस कॉल, मैं अक्सर कहता हूँ ये इतनी बेहतरीन सहूलत है। कॉन्फ्रेंस कॉल जो है, जज़ाकल्लाह खैर, इमरान रसूल साहब इस सेशन को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह खैर इमरान रसूल साहब। इमरान रसूल साहब दिलाबाद से हमारे मीडिया के बहुत अहम शख्स हैं, आप एटा का मीडिया सेंटर चलाते हैं। तो और एक वेबसाइट है से नमस्ते, उससे भी अपन बच्चों को लिंक कर सकते हैं हम लोग। से नमस्ते एक रेगुलर फोन के जरिए सर, जहाँ पर इंटरनेट सहूलत होती है नॉमिनल, उसपे कर सकते हैं हम लोग। जज़ाकल्लाह सर। कल अगर थोड़ा सा वक्त मिलता है तो कल के सेशन में आप अनवर साहब एक से नमस्ते वाले के बारे में थोड़ा सा अपडेट करिए हम सब। इंशाल्लाह। सर मेरा एक सवाल है, मैं बात कर रहा था, कॉन्फ्रेंस कॉल इतना आसान तरीका है जिसमें एक कॉल पे आप 8 से 10 बच्चों को ले सकते हो और एक साथ 8 से 10 बच्चों को ओरल एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। इसमें आई कांटेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन लिसनिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स के जरिए से हम बच्चे को अपडेट कर सकते हैं। और वक्त है 5 मिनट का, इंशाल्लाह अगर कोई और सवाल है तो हम इसमें ले सकते हैं। सर मेरी तरफ से एक सवाल है, क्योंकि मैं आज पहली बार जूम पर शामिल हुआ हूँ, तो मुझे इस बात की कुछ इत्तला नहीं है कि ये जूम ऐप पर जो हम अपनी टीचिंग का, ऑनलाइन क्लासेस का जो इनेकाद करने के लिए जो तजवीज़ पेश की जा रही है, तो ये किस पर इसका इतलाक हो सकता है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए या हाई स्कूल के बच्चों के लिए? बहुत अच्छा सवाल है सर। ये जूम का जो ऐप है सर, ये उन बच्चों तक पहुंच सकता है जो एक घर में स्मार्टफोन रखते हैं बस। अगर आप प्राइमरी स्कूल के लिए जा रहे हैं तो आपको पेरेंट्स वहां सपोर्ट करेंगे, जो बटन्स आप दबा रहे हो बच्चों को दबा कर देंगे, बच्चा जो बोल रहा है वहां से रेस्पॉन्स आ जाएगा। प्री प्राइमरी स्कूल में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के क्लासेस को भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर आप एज ए मेंटोर उनको ट्रेनिंग दे रहे हो। वो बच्चा खुद ऑपरेट नहीं कर सकता, लेकिन उनके जो आजू बाजू जो गार्डियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो उसको ऑपरेटिंग में हेल्प करेंगे। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है। और बच्चा अपने एक मिनट सर, बच्चा जो अपने वीडियोस हैं जो रिकॉर्ड किया है, जो राइम्स हैं, जो टेबल्स हैं, या फिर लेटर्स वगैरह, वर्ड्स जो भी वो सीख रहा है, वो आपको भेज सकता है बड़ी आसानी से।
एक चीज बोलकर एक नेक्स्ट कॉलर पे जो मैं जाऊंगा, वो ये कि क्या जूम सेफ ऐप है? ये सुबह से सवाल चल रहा है, क्या जूम एक सेफ ऐप है? बिल्कुल जूम एक सेफ ऐप है, और इस ऐप के जरिए से हम, एक मैसेज आई है बाद में रिपीट करूंगा, ये ऐप के जरिए से हम सारे ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल सेफली ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है। ये सेफ्टी के नॉर्म्स गवर्नमेंट के लिए हैं, जो कुछ सीक्रेट बात अगर लीक हो जाए, ऐसा कुछ डाउट है तो हो सकता है, क्योंकि इसमें मुमकिन है कि जो ऐप बनाया है वो हमें देख रहा हो। तो ये टीचिंग क्लासेस के लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई हमें देख रहा हो, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा कुछ सीख रहा है, वो कुछ बोल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ये जूम ऐप सेफ है। इसके अंदर आप मनी ट्रांजैक्शंस वगैरह ना करें, उसके कोड्स वगैरह ना बोलें, बैंक अकाउंट्स, उसके पासवर्ड्स ना बोलें, बेहतर है। इसी ऐप में नहीं, किसी भी ऐप में ना बोलें। हर ऐप का वही मसला है। और दूसरी चीज, इसमें कोई हायर ऑफिशियल्स वाली बात है, कोई बड़े आप इक़दाम लेना चाह रहे हो जो आप पब्लिक तक लीक नहीं करना चाह रहे हो, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स वगैरह जो है उनके लिए ये ऐप उतना सेफ नहीं है, लेकिन बाकी सभी के लिए जो है ये ऐप सेफ है। सवाल के लिए आगे बढ़ते हैं। सर मेरा एक डाउट है जी। जैसे कि अब अपन एक क्लास में, सपोज मैं एक 10th की क्लास ले रहा हूँ सर, उसमें मेरे पास बॉयज भी है, गर्ल्स भी है जी। तो एट वन टाइम अगर बॉयज और गर्ल्स को ले रहे हैं घर से अपन, तो उसमें डिस्टरबेंस हो सकता है सर। जैसा कि अपन चार्ट कर सकते हैं, चार्ट से मतलब चार्ट पे ऑप्शन अपन बाद में, मैं देखा फिर बाद में उसको ओनली होस्ट कर सकते हैं बोल के। अभी डाउट क्या है सर, जैसे कि स्क्रीन पे जो जैसे कि अपन लाइव स्क्रीन पे आ रहे हैं सर, तो गर्ल्स को अपन ऑफ कर सकते हैं कि अपनी तरफ से? जी सर, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है, आप ऑफ कर सकते हो आपकी तरफ से। आप जब पढ़ा रहे हैं, जज़ाकल्लाह इश्तियाक साहब स्क्रीन शेयर हटा दीजिए, जज़ाकल्लाह। सैयद इश्तियाक साहब निर्मल से जो स्क्रीन शेयर हो रहा है उसको हटा दीजिए, देख चुके हैं। इसके बारे में आप चाहे तो बोल सकते हो। ये जो है, ये जो न्यूज आई है उसके बारे में पहले भी ग्रुप्स में डाल चुका हूँ और अभी क्लैरिटी भी कर दिया। अगर आप उस दिन का डेक्कन क्रॉनिकल या हिंदू अखबार निकालेंगे तो ज्यादा डिटेल है। तो इश्तियाक अली साहब स्क्रीन पे से उसको हटा दीजिए। हाँ सर, तो हम ये बात कर रहे थे, तो अगर बॉयज दोनों साथ में आ रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है सर। आप पहले ये बोलें गर्ल्स को कि वो अपना वीडियो ऑफ रखें। आपके खुद के पास ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी ज्वाइनर है वो वीडियो ऑफ और ऑडियो ऑफ होकर ही शामिल होगा। ये आपके पास ऑप्शन है, आप वो ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेना। सेटिंग्स में जब जाओगे आप, सेटिंग्स के अंदर ये आपको ऑप्शन दिया गया है कि जो भी आपका जूम सेशन ज्वाइन करेगा उसका ऑडियो और वीडियो ऑफ रखा जाए। ये एक सहूलत है। दूसरी सर, जब आप सेशन ले रहे हो तो मैं चाहूंगा कि आपके साथ और एक आदमी को आप जोड़ दें जो आपके साथ को होस्ट बनेगा। को होस्ट का काम ये रहेगा कि कोई भी चीज ऐसी नजर आ रही है तो वहां पर जाकर उसको ऑफ कर देगा। ये एक ऑप्शन है। व्हाट्सएप ग्रुप से ये बेहतर इसलिए है कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आइडेंटिटी रिवीलिंग के चांसेस है बॉयज के गर्ल्स के। यहाँ पे वो चांस नहीं है। यहाँ पर कोई किसी का फोन नंबर नहीं देख सकता, कोई किसी के साथ पर्सनल चैट पर नहीं आ सकता। ये बड़ा फायदा है जूम का। तो होस्ट, थैंक यू मोहम्मद मेमोरियल स्कूल। जी अनवर साहब जज़ाकल्लाह। मोहम्मद मेमोरियल स्कूल से जज़ाकल्लाह, आपकी मैसेज आ चुकी है। तो हम जो होस्ट है, होस्ट के पास ऑप्शन है, वो जाकर वीडियोस ऑफ कर सकता है, वो ऑडियोस ऑफ कर सकता है। बिल्कुल ऑप्शन। अगला सवाल सर, एक और एक डाउट। मैं जब इसको क्लासेस ले रहा हूँ था सर, मैं 40 मिनट्स का वीडियो चल रहा है मोबाइल फोन पे, उसके बाद अगर अपन 40 मिनट्स से ज्यादा अगर लेना है तो उसको खरीदना पड़ेगा। तो $14.99 में है वो, अप्रोक्सीमेट 1200। तो मैं सर जब खरीदने के लिए गया था उसको ऑनलाइन से, तो डेबिट कार्ड नहीं दे रहा सर ऑप्शन में। डेबिट कार्ड से मैं खरीद रहा था तो उस पर नहीं आ रहा सर, उसमें मतलब खाली उन्हें क्रेडिट कार्ड और पेपाल बोल के बतला रहा। जी सर, मैं आपको एक पहली चीज बता दूं कि जब आपके पास यूजर ज्यादा होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सेशन जो है अनलिमिटेड टाइम का हो जाता है। पहला तो अनलिमिटेड टाइम हो जा रहा है तो आपको ये सहूलत हो जाएगी। दूसरी चीज सर, आप प्लीज अभी जूम मत खरीदें। आप आईडीज डिफरेंट यूज करें। आपको 8 से 10 सेशन तो आंख मुझ के बड़े सेशंस लेने देगा।
उसके बाद अगर आपको पैसे पूछता है, कुछ और होता है, तो आप आईडीज को चेंज कर ले जूम के सेशंस ले सकते हैं, ईमेल आईडीज को बदल के ले सकते हैं आप, या फिर फोन नंबर्स के जरिए से भी, मुख्तलिफ फोन नंबर से भी आप ले सकते हैं। फिलहाल परचेसिंग ना करें क्योंकि अभी रेट्स हाई है, अभी इसकी कीमतें बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारी दुनिया भर में क्लासेस इसी से चल रहे हैं। अभी थोड़े दिन रुक जाए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई और सवाल? सकलेन सर सबको म्यूट करिए प्लीज, सकलेन सर सबको म्यूट करिए, जो बोलना है वही। हाँ सर, हेलो। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। तो अभी हम एंडिंग पर आ रहे हैं। हमारे इस सेशन में हमारे साथ में तेलंगाना ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट जनाब यकीनुद्दीन साहब जुड़े हुए हैं। सर हम आपको वेलकम करते हैं इस सेशन में। तेलंगाना के सदर जनाब खालिद हुसैन खैसरी साहब भी जुड़े हुए हैं इस आईटा के प्लेटफॉर्म पे। मैं एक बार फिर सभी को ये बता दूं कि ये जो सेशंस हैं आईटा की जानिब से हो रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस हैं। इसमें ना सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात होगी, बल्कि इसमें और डिफरेंट कोर्सेज भी लाए जा रहे हैं जो टीचर्स के लिए मुफीद हैं, जो घर बैठे किए जा सकते हैं। तो शुरुआत इसकी ऑनलाइन कोर्सेज से हुई है। इसके आगे कुछ मजमून कॉम्पिटिशन, कुछ एसे राइटिंग वगैरह की बात हो रही है। इंशाल्लाह उसको भी आगे लेकर जाया जाएगा। और बहुत ही खुशी की बात है, बहुत काफी बेहतरीन ये सेशन रहा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने इसमें एक टू वे पार्टिसिपेशन किया, और आप ही की मदद से जो है ये सेशन अब तक इतना सक्सेसफुल चल रहा है। और ये जो सोच है कि घर बैठे भी टीचर्स को कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्व करिए, ये सोच ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से तेलंगाना से ली गई है। तो इस सोच का भी हम खैर मकदम करते हैं। और हम आप सब लोगों का, गवर्नमेंट टीचर्स, प्राइवेट टीचर्स, मदरसे से टीचर्स जो जुड़ रहे हैं, उनका भी हम इसमें वेलकम करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि बिना एब्सेंट हुए आप तमाम ये 6 दिन 7 दिन का जो कोर्स होने जा रहा है, ये कोर्स को आप अटेंड करेंगे, और इससे जो भी सीखा है आप इसको फिर दूसरों तक पहुंचाएंगे। मैं ये तमाम पार्टिसिपेंट, फिलहाल 53 पार्टिसिपेंट अभी भी मौजूद हैं, मैं आप सबसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि आप सब जो भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए सीख रहे हैं, इसको सिर्फ अपने हद तक ना रखें, इसको फिर अपने टीचर्स तक, अपने कलीग्स तक, अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाएं, ताकि वो इस तालीमी निज़ाम को दूसरों तक फैलाएं। फरहीन बेगम मैम, जज़ाकल्लाह खैर, आपका मैसेज आ चुका है। अगर आप में से किसी के यहाँ कोई सवाल है तो ठीक है, वरना मैं वक्त दे रहा हूँ अभी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब खालिद हुसैन खैसरी साहब को। सर आरिफ साहब, एक मिनट सर। जी सर। जी सर, ये टाइमिंग में कुछ खवातीन ये कर रहे थे सर के, ये टाइम जरा 4 to 5 के जाए 3 to 4 ऐसा कुछ कर सकते हैं, मतलब क्यों ये रमजान की तैयारी के सिलसिले में बोल के ऐसा कुछ हो सकता है? जरूरत महसूस होती है तो अगर आप सब इसके लिए रेडी हैं तो बिल्कुल मुमकिन है। आप जो भी रेडी हैं आप थम्स अप बता दीजिए, हम इंशाल्लाह वोटिंग कर रहे हैं। इसमें मैक्सिमम लोगों का नंबर लिया जा रहा है। आप अपने नाम के नीचे क्लिक करें, वहां पर आपको मोर रहेगा, मोर पर जाएं और अपने थम्स अप बताएं, ताकि हमको पता चल जाए कि कितने लोग इसके लिए अग्री हैं। 3 से 4 की टाइमिंग के लिए कितने लोग अग्री हैं, क्योंकि खवातीन को 4 से 5 पकवान वगैरह के लिए मुश्किल हो रही है। माशाल्लाह बेहतरीन वोटिंग, मुझे खुशी है। आप लोग कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हो, माशाल्लाह। ओके माशाल्लाह, वोटिंग का सिलसिला खत्म, जज़ाकल्लाह खैर। सभी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, तकरीबन पार्टिसिपेंट्स का ये मानना है कि 3 से 4 बेहतरीन वक्त है। तो इंशाल्लाह कल का सेशन 3 से 4 का रहेगा। और बिफोर खालिद हुसैन खैसरी साहब स्पीक्स। जी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, जी फरमाइए। हाँ, तो सवाल ये है कि अब मसलन अगर उर्दू की एक नज़म पढ़ा रहे हैं जी, हाँ, एससीईआरटी का सिलेबस है, उसी मौजू पे, उसी कॉन्सेप्ट पे, फर्ज कीजिए बरसात की नज़म है, तो एनसीईआरटी से कुछ बुक लेकर देखकर पढ़ाने के लिए तो हमको किस में जाना पड़ेगा? सर जी, सवाल समझ में आ गया। कल का सेशन आप जरूर अटेंड करें। कल के सेशन में मैं बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के जरिए से जो बुक्स को ऑनलाइन किया जा रहा है,
وہ جی बुक جی जो है वो नज़म जो है आप बच्चों तक कैसा शेयर कर सकते हैं कल इंशाल्लाह बताया जाएगा। उसमें अच्छा इसमें अच्छा सहूलत है, इसमें वो सहूलत है कि आप सारे के सारे पेज बुक सब शेयर कर सकते हो बच्चों से। तो उनके अच्छा पास अगर जी किताबें नहीं भी हैं बच्चों के पास तो कोई परेशानी की हम्म, बात नहीं, आप सारी की हम्म, सारी किताब बच्चों से यहाँ से शेयर कर सकते हैं। अच्छा बहुत अच्छा, शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। तो कल का जो सेशन रहेगा उसमें मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ आप सभी पार्टिसिपेंट से कि ये सिर्फ नाम मुझ पर छोड़ें, आप खुद भी इसमें हिस्सा लें। आपको मुझसे कुछ और बेहतर जानकारी है, जानते हैं आप, तो आप प्लीज आगे बढ़ें और आप भी ट्रेन करें। ये ऐसा कोई वन वे प्रोसेस नहीं है, ये एक जी कंप्लीटली बहुत एक अच्छा। ऐसा कोहॉर्ट है जिसमें एक कोलैबोरेटेड लर्निंग हो रही है। तो जो लोग इसके बारे में जानते हैं आप उससे उसमें से प्लीज आगे आएं और आप खुद भी शेयर करें। अभी मुन्नीसा टीचर जजाकल्ला खैर आपका नाम है। अभी मैं ओवर कर रहा हूँ इसको खालिद हुसैन खैसरी साहब के पास। जनाब खालिद हुसैन खैसरी साहब, आईटा तेलंगाना प्रेसिडेंट, सर प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम सर, जजाकल्ला खैर। जी बहुत वालेकुम सलाम। बहुत अच्छी बात है कि ये पूरा सेशन एक बामकसद और बहुत पार्टिसिपेटिव रहा। मैं जितने लोग आज शामिल थे वो तमाम लोग कम से कम इस बात को जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि कब हमें शामिल होना चाहिए, कब हमें रुकना चाहिए। बहुत अच्छी मॉनिटरिंग भी हुई है। मैं तमाम से ख्वाहिश करता हूं कि आरिफ साहब अब ऐलान करेंगे कल का सेशन 3 बजे से होगा या 4 बजे से होगा, और उसे फॉलो करते हुए इस नए तजुर्बे को हम आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह हम आने वाले काफिलों के रहनुमा बन सकेंगे। शुक्रिया। जजाकल्ला खैर साहब। अगर यकीनुद्दीन साहब, जनाब यकीनुद्दीन साहब नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम सर। बड़ी खुशी और मसरत का ये मौका है। मैं इस मौके पर आईटा तेलंगाना को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। एक अच्छी की तेलंगाना के इस इलाके से मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर भी ये इसमें पार्टिसिपेट हैं, शरीक हैं, फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आईटा का मकसद कि मुल्क के अंदर तमाम टीचर्स को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, गवर्नमेंट सेक्टर के हों, सबको से वाकिफ करवाया जाए और अपनी टीचिंग के अंदर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक। इस बीच में आयता इशाक साहब से मैसेज, आसिया टीचर से मैसेज, जजाकल्ला खैर आप लोगों की हिम्मत अफजाई के लिए, जजाकल्ला खैर। तो कल का सेशन जैसे बात हुई है इंशाल्लाह 3 से 4 बजे के दरमियान में रहेगा। वक्त की पाबंदी करें, ठीक 3 बजे स्टार्ट होगा और 4 बजे इंशाल्लाह खत्म करेंगे कल का सेशन। आप सभी के पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बराबर 5 बज चुके हैं और हमें इसको क्लोज करना है। अब्दुल सबूर साहब की तरफ से जज़ाकल्लाह खैर। नीचे मैसेजेस आ रहे हैं। आरिफ साहब एक मिनट सर। काफी अच्छा लग रहा है। ये कल के लिए आईडी और पासवर्ड सेम रखेंगे आप, उसको सेम रीशेड्यूल कर दीजिए ना सर, ये सेम मीटिंग नहीं, कल के लिए फिर नया आईडी पासवर्ड रहेगा क्या? नहीं सर, ये लिंक जो मैंने दी है ये 1 हफ्ते तक की लिंक है। 1 वीक तक इसी लिंक के जरिए से आएगा, सेम यूजर नेम और सेम पासवर्ड रहेगा। ओके ठीक है सर, जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया सर। कल से 3 से 4 तक इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद मेमोरियल स्कूल, मुश्ताक साहब जज़ाकल्लाह खैर, नसीरुद्दीन साहब जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस सेशन में काफी काबिल लोग भी जुड़े हुए हैं। नसीर साहब जुड़े हुए हैं इसमें, इमरान रसूल साहब जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि कल आप लोग भी थोड़ा सा और आगे आएं, अपनी तरफ से भी इसमें कुछ शेयरिंग करें। जज़ाकल्लाह खैर। ये सेशन आज का यहाँ पर क्लोज होता है। फ्रॉम आईटा तेलंगाना, आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग मीटिंग से लीव कर सकते हैं। आपको एक लीव का ऑप्शन ऊपर आ रहा है रेड कलर का, आपकी तस्वीर पर टच करने से आप वहां से मीटिंग से लीव कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। Okay.
Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.